As I called it, I don't usually say the topic is some basic concept. I say this is mole concept. Okay. So write down as mole concept 1, which is NCRT 11th NCRT book 1. Okay. And then if we if you want, we will learn mole concept 2, in which that is 11th NCRT book 2 chapter 1. That is the balancing. This whole gamut of things falls under the umbrella of the topic called mole concept. Okay, so before we begin the topic, can all of you raise hand, at least those who have uh, a basic understanding of the topic, and those, yeah, just raise the hand, those who have basic understanding of the topic, so that I can proceed according to that speed, right? Anyone? Those who have, I mean, we did learn it in the first class of the solution chapter. What is mole, what is concentration? Those are the topics that fall under the purview of mole concept. So nobody has a basic understanding. That is what is mole. I'm not asking very deep layer understanding, just a basic one. Anyone? Now, before we move forward to the topic, okay, so two or three people have basic understanding of the topic. Okay, that is nice. Now, before we move forward, does anyone have any doubt in the previous topic, at least question related doubt or any concept related topic? Because we need to make sure that the topic that you have covered, you have a very thorough understanding of that particular topic. So, anyone has any problem in the solution and colligative property? Any topic that we can go over? Most of you were absent in the last class. Okay, so no problem with there. Okay. So the topic mole concept. Can everyone open your camera? It will be nice to put a face, no? Coming to the topic of mole concept. See, the mole concept, I told you, will divide the topic in two parts. That is the chapter 1 of the book 1 and chapter 1 of the book 2 of the NCRT standard. Okay. Now, before we go into detail, I want to tell you basic thing. Okay. The chapter 1, the one that we are going to learn today and in the next class, that is mole concept 1, it is not particularly a chemistry based. Okay. I hope everyone has bought grocery sometimes in your life. So that is what it is. Doing the basic calculation that you do while the grocery shopping. Okay. So before we move forward, let's start with the basic thing, because I have encountered that some people don't understand the grocery shopping, which is quite funny because everyone does that, right? So let's come back to the topic. So for example, I'm starting with 1 dozen. 1 dozen is equal to 12 bananas, right? Everyone knows that until unless over there they sell bananas as kg. Okay. Now coming to the part, 1 dozen is equal to 12 bananas. So if I'm asking 3 bananas is equal to how many dozens? Believe me, many people are not able to answer this one. 3 bananas is equal to how many dozens? 12 divided by 3. 12 divided by 3. So that would be 4 dozen. So that is your answer. That 1 dozen constitute 12 bananas, but 3 bananas constitute 4 dozen. Yeah, 3 divided by 12. So how 12. do we proceed that? This is called unitary law, right? We Yes. usually learn it in the lower standard. We just it's called unitary law. So how do you approach it? I mean, this is a simple calculation, so you do it in your mind. But how do you approach it? You write like this: 12 bananas is equal to 1 dozen. Please be very careful because we are going to do the whole class. We will do this only. Instead of banana, there will be something else. Instead of 12, there will be some other number. So you need to be very clear about what is unitary method. So 12 bananas is equal to 1 dozen. So one banana is equal to 1 by 12 dozen. And how many did I ask? 3 bananas. So 3 bananas is equal to 3 into 1 by 12 dozen. Those who are not comfortable with the calculation, write it down because we will be repeating this calculation over and over. So this will be 1 by 4 dozen. So 3 bananas is equal to 1 by 12. This is what we are going to do. Is that clear? Yes, Is sir. this clear? Okay. Now coming to the main topic. So what is mole? Now banana we can do very easily via dozen. But mole is a very small thing, or atoms are very small thing, or say for example sand particles are very small. Anything which is very small. If we start counting them in dozen, would it make sense? क्या अगर हम उन्हें डजन में काउंट करें तो क्या ये हमारे लिए इजी होगा काउंट करना? नहीं ना, बिकॉज दे आर टू स्मॉल एंड डजन डजन मेक डिफरेंस देयर.
So we define mole as a very large number. So we define, I'll give the definition later on because definition is not that important. First of all, the formula and the topic is much more important. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 entities. Anything. So this is basically, as I told you, this is not a chemistry topic. This is a basic general calculation topic. So if I'm saying 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23, actually यहाँ पे 2 3 होता है. I'll give you specifically, but calculation wise 6.022 is much easier. So that is why we are taking 0.22 into 10 to power 23 entities. So suppose if I say that I have 1 mole of banana, okay. So 1 mole of banana will constitute 6.022 into 10 to power 23 bananas. So this is how you do the calculation. Is that clear? समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, एक sir. और वर्ड होता है जो काफी ज्यादा आता है, ध्यान रखना. मोल को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं. अगर आप एटम के कॉन्टेक्स्ट में मोल को लिख रहे हैं तो लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ग्राम एटम. और अगर आप मोल के मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो उसे ग्राम मॉलिक्यूल. मतलब जब भी कभी ग्राम लगा के डैश लगा के कुछ लिखा हो तो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मोल. ओके. और अगर आयन के कॉन्टेक्स्ट में होगा तो ग्राम आयन. So this is how they write the mole. This is another way of writing mole. This is very frequently occurs in the question and people do make mistake there. So you should not be doing that. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 entities होता है. इतना क्लियर है सबको? डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं अभी मैं बिकॉज दैट इज नॉट वेरी यूजफुल, ऑल्दो आई डिक्टेट द डेफिनेशन, डोंट वरी. बट पहले आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए इसका. अच्छा, एक और डेफिनेशन होता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है. मोल इज द वर्ड while the unit mole is simply mol. If I'm using the word mole as a unit, जैसे हम kg यूज करते हैं, जैसे हम ग्राम यूज करते हैं, तो जब हम मोल को यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे तो mol लिखते हैं ना. मोल इज इक्वल टू ऑल्सो होता है वेट इन ग्राम. केमिस्ट्री में वेट एंड मास सेम होता है, तो प्लीज डोंट कॉन्फ्लेट देम एज यू डू इन द फिजिक्स. केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, आप वेट वर्ड यूज करिए, मास यूज वर्ड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है. ये भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था जब हमने सोल्यूशन का पढ़ा था. ठीक है. अच्छा, एक और वर्ड हो गया, ये जो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये सब सोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था पहली क्लास में, तो इट शुडंट बी मच प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर. और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन नॉट या फिर एन ए, वट एवर वर्ड एक्चुअली सूट्स यू. ठीक है. कोई एन नॉट बोलता है, कोई एन ए बोलता है, वट एवर सूट्स यू. ठीक है, अपर केस एन में. तो रादर देन, बिकॉज ये बहुत बड़ा सा नंबर है तो इसको बार बार लिखने की जगह पे हम एन नॉट या एन ए लिख देते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो आई डू वन क्वेश्चन देन यूल डू अनदर वन. बड़े. Yes, sir. ओके. अगर लिख रहे हो तो बता दीजिएगा आप. ठीक है. चलिए लिखिए, वही क्वेश्चन करेंगे जो उस दिन किया था. अगेन 49 ग्राम H2SO4 दिया गया है. ठीक है. पहला कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. आपको मोल निकालने हैं तो पहले आप मास लिखेंगे. हमेशा क्वेश्चन में जब भी आप कोई नया चैप्टर शुरू करिए, आई एडवाइज दिस टू माय स्टूडेंट कि पहले आप हमेशा गिवन लिखा करिए. भले इट इज अ वेरी रूडिमेंट्री प्रोसेस बट यू शुड डू इट बिकॉज ये आपकी हैबिट डेवलप करता है और हेल्प करेगा आपको लॉन्ग रन में. 49 ग्राम है. मोलर मास कितना है? H2SO4 का मोलर मास किसी को याद है? Mm, चाहिए वैसे बिना कैलकुलेट किए हुए भी. हाइड्रोजन कितना होता है आपका? 2 इंटू 1 1. प्लस 1 इंटू सल्फर इज, इसे नहीं. अच्छा. सल्फर इज हाउ मच? Come on, you should be able to remember this. You are in 12. Sulfur is 32 बेटा. ठीक है. Oxygen is 16. 16. So that gives you 98. Okay. So the number of moles is equal to weight in gram or mass upon molar mass. So 49 upon
98. So that is half mole. Okay. Yes, sir. Now, second part is write down the question. How many molecules are there? How many molecules are there? This is A part. What is the number of mole? Second is how many molecules are there? ओके, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अभी पढ़ाया था, वन मोल में कितनी एंटिटीज होती हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23. Yes, ठीक है, sir. तो वन मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं. एंटिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात करें तो विल से मॉलिक्यूल. तो वन मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं. तो और एक्चुअल में आपके कितने मोल निकल के आए? 1/4. 1/2 बेटा ना. 2, sorry. 1/2 mole is equal to 1/2 into 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल. तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज 3.011. अब देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 23 लिखने की जगह पे 22 लिखा था, बिकॉज इट बिकम्स इजियर कैलकुलेशन वाइज, राइट. ये हो गया. ठीक है. सी पार्ट, इतने मॉलिक्यूल हैं आपके. दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके. How many atoms are there? The C part is how many atoms are there. Write down the question. How many atoms are there? So how many atoms are there? Atoms are very simple to calculate. 1 H2SO4, एक H2SO4. जब आपने एक मॉलिक्यूल लिया, one molecule of H2SO4, I can write it like this. One molecule of H2SO4 has how many atoms? Can you count them? 7. 7 atoms. So one has 7 atoms, but in reality, how many molecules we have? We have 3.011 into 10 to power 23 molecules. तो इतने में कितने एटम हो जाएंगे? 7 into 7 into 3.011. 3.011 into 10 to power 23 atoms. Okay. Now you do the. Can I rub the B part? The C part is this one. The D part is how many hydrogen atoms are there? Okay. Now they can ask. This is the total number of atoms. Okay. The total number of atoms are. These were the number of molecules. Okay. Now they can ask you the independent atoms. So for example, they can ask you how many hydrogen atoms are there. So same logic will apply. One H2SO4 has how many hydrogen atoms? One H2SO4 has how many hydrogen atoms? 2. 2. So one molecule of H2SO4 has 2 hydrogen atoms. In general, how many H2SO4 molecule you have? In the question. 3.011. So 3.011 into 10 to power 23 H2SO4 will have 2 into 3.011 into 10 to power 23. Okay. Now, clear? Yes, now sir. do the text part. How many sulfur atom are there? 1. 1. So total कितने हो जाएंगे? 3.011 into 10 Exactly. to power 3.011 into 10 to power 23. Okay. How many oxygen atoms are there? 4. 4. So what will be the answer? Overall? 12.4044 into 10 to power 23. Right. Now this is the basic topic. Yes, sir. Now the next topic is, or the next question that you have to do, not the topic, at least you should do one question, right? So let's take 90 gram of C6H12O6. Do the mole, molecule and atom. Calculate the number of moles, molecules and atoms. Carbon is 12. I hope you know that. Do the Yes, sir. calculation and send the answer in the message. Send the answer like this, कि mole is equal to itna. Send all the answer, right? Molecule is equal to itne. You don't have to write
6.022, you can write Na for the typing purpose. And atoms, okay, you have 2 minutes, no more than 2 minutes. Okay. Acha, this is a bad advice, but still I am giving you. In the class, use the calculators. In the class only, not at home. Okay. In the class, use the calculators so that we can save the time. ओके बस कि लेकिन केवल और केवल क्लास में, घर में करने का आदत मत डालना ना, वरना एग्जाम में बहुत गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लास में आप यूज कर सकते हैं टू सेव द टाइम। ऑल्दो अभी इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए नहीं है कि यू शुड यूज कैलकुलेटर और you have a need of calculator. The questions are not that complex, so do it in 2 minutes. It's it. So I'll ask you at 20. So let's see. You can raise the hand later if you have done correctly. Now mole is given. Mole is equal to weight in gram upon molar mass. The molar mass of this thing is 180. If somebody has calculated it, so 90 upon 180. So that will be half a mole. ठीक है, एक मोल में होते हैं, 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to power 23 molecules. So how many molecule it will contain? Half of 6.022 into 10 to power 23 molecules. Okay. Now coming to the atoms. So one C6H12O6 contains 24 atoms. एक 1 molecule contain 24 atoms. So total number of atom will be 24 into this is 3.011 into 10 to power 23. Okay. How many of you got it correct? Yes, sir. Okay. I hope rest of you also got it correct. So Yes, number of atoms, this should means separate निकालना पड़ता है या हाँ bulk सेपरेट भी निकाल निकालना? सकते हैं आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं। आई शुड हैव बीन मोर स्पेसिफिक। आई आस्क्ड फॉर टोटल नंबर ऑफ मोल। आप सेपरेट भी निकाल सकते हैं। सेपरेट कितना हो जाएगा? कार्बन विल बी 6 into 3.011 into 10 to power 23. Hydrogen will be 12 into 3.011 into 10 to power 23. Oxygen will be 6 into 3.001 10 to power 23. Is that clear? Yes, sir. Okay. Let's do a reverse question. अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं आपसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया 3.011 into 10 to power 22 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. ओके, कैलकुलेट मास। करिए। अभी एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास बोला था बनाना वाली चीज वही करनी है आपको। यू नो 6.011 into 10 to power 23 बराबर 1 मोल होता है। 6.022 into 10 to power 23 is equal to 1 mole. So you have to figure out 3.011 into 10 to power 22 is equal to how many moles? Same question as that of banana, just the number is different. No, beta, we asked the mass. You are giving incorrectly. No, we asked the mass. Okay, we did it. That is why I'm giving you this question. I told you that the banana question is very important at the beginning of class. That sounds very funny thing to say, that bananas are very important, but for this context, it is a little bit important. So as we did that question, we will do the same question in the same manner. First, you will write 6.022 into 10 to power 23 is equal to 1 mole. Okay. So one thing is equal to, or one molecule is equal to 1 upon 6.022 into 10 to power 23 mole. Now, how many molecules have been given to you? 3.011 into 10 to power 22 molecules. कभी भी हवा में क्वेश्चन मत करिएगा। आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड द रेफरेंस। हवा में मतलब डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग मेंटली। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम ऑन द पेपर। दैट वे यू वोंट मेक मिस्टेक। दिस इज 3.011 to 10 to power 22. So this will become 1 by 20.
Not 1 by 2. Somebody said the answer was 22. So I think you missed the 0 there, right? So this Yes, is the sir. number of moles. So you got the number of moles. Now you know mole is equal to write everything as I am writing, because it will be very important in long run, because it will quicken your thinking. Then you will be able to solve it in your mind. Mole is equal to weight in gram upon molar mass. Mole is equal to half. Weight is, you have to calculate. So let's say it is x upon molar mass is 44. This is mole is 1 upon 20. So answer will be 44 by 20. You can simplify this one. It will be, I think, 11 by 5, right? Did anybody get the right answer? 11 by 5. Yes, sir. Okay. Jay. बाकी किसी को नहीं आया था, हो जाना चाहिए था ये तो. Okay. Let's do another. First of all, anything else you want me to do? I mean, do you want me to do another question, or the concept is clear? Because then we can move on to next topic. Do you want me to do more Yeah. questions? So wait. बेटा आपको बोलना पड़ेगा. अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो हम वी कैन मूव फॉरवर्ड. वी कैन डू मोर क्वेश्चन. अगर आपका क्लियर हो गया तो टाइम आपका ही बचेगा ना. आपका टाइम है, आपको बोलना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आप 2 points. सामने नहीं बैठे तो मैं आपका फेस देख के नहीं बता सकता कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो. राइट. तो बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो वी डू मोर क्वेश्चंस. बताइए. So 2.2 ANC का ही होता था. हाँ, एक दो और Yes, sir. कर आया. एक दो क्वेश्चन और करने हैं. यस सर. Okay, let's do. So let's take 6.011 और 2 ही ले लेते हैं into 10 to power 21 ले लो इस बार. 21 molecules of, क्या लिया जाए, क्या अच्छा लगता है? हाँ, वो था. नहीं, कौन सा मॉलिक्यूल लिया जाए? वाटर. Okay, that's simple actually. Okay, let's take something we don't like, no? Yes. थी. करिए. Calculate the mass. You have to calculate the mass. ओके, चलिए बताइए. वाटर प्लस अल्कोहल क्या होता है? पॉजिटिव डिविएशन होता है, नेगेटिव डिविएशन होता है? जिन्होंने सोल्यूशन पढ़ लिया अच्छे से. वाटर में जब अल्कोहल मिलाते हैं तो पॉजिटिव डिविएशन होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव. ना, पक्का? इसे नहीं. वाटर. वाटर प्लस अल्कोहल इज अ पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन. पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, ना दिक्कत हो जाएगी. ऐसे ही क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा. खैर, करिए. और नेक्स्ट लास्ट का कराया भी था मैंने, लिखाए थे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन, और मैंने कहा था आपको वो याद करने हैं. ओके, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है? डेल्टा. पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ता है या घटता है? वेदर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? increases. ओके, एंड द डेल्टा वी वॉल्यूम. Volume. वॉल्यूम इन द positive deviation, the volume increases or decreases? Volume Delta V increase. mix. Do you remember this topic we also did? Delta V mix. Yes, sir. So whether it increases or decreases? Increases. Increases. Okay. And the interactions, the force of attraction increases or decreases? 20 man, 21, 22, 23. इसे नहीं. Hmm? 21, 22, 23. Rest of you who have not studied Yes, sir. this, you can carry on with the question. So the force of attraction decreases or increases in the positive deviation? The positive में वो force of attraction means solute का strong होता है और solute solution का weak होता है. ये कहाँ से आ गया?
मैं कह रहा हूँ जब आपका सोल्यूशन में पॉजिटिव Something. डेविएशन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी करके बताया था ना कि ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन Yeah, ए बी वही का तो. इंटरेक्शन, तो दैट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस. AB का interaction decrease. ओके, डिक्रीज होता है, सही कह रहे हैं आप. ठीक है, नाइस. हाँ. 4600 तो नहीं आना चाहिए बेटा जी. हाँ, मतलब तुमने किया सही है, बट आई थिंक तुमने कैलकुलेशन गलत कर दी है. यहाँ पे 21 है, ध्यान देना अगर गलत लग रहा हो. डू ईच स्टेप एट अ टाइम. सो क्या होता है आपका? 2 into 12 plus 5 plus नहीं बेटा, 16. एकदम 520 तो नहीं होना चाहिए. ओके, देखिए क्या होता है, फिर से करते हैं. डू द वन थिंग एट अ टाइम. 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, so 1 molecule is equal to 1 upon 6.022 into 10⁻23. ओके, 10. अब आपके पास एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल दिए गए, ये दिए गए हैं. तो 6.022 into 10⁻21 molecules is equal to 6.011 into 10 6.022 into 10⁻21 अपॉन क्या हो जाएगा, 6.022 into 10⁻23. ये हो जाएगा. तो इससे ये कट गया. 10⁻21 अपॉन 10⁻23 कितना होता है? 1 by तो हमेशा जब डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है. इसको नीचे लेके जाओ तो 1/10⁻2 हो जाएगा, तो दैट इज 1/100. तो मोल्स आपके 100 आ गए हैं. ठीक है, 1/100 आ गए, 100 नहीं. तो मोल 1/100 आ गए. तो मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. तो वेट इन ग्राम आपको निकालना है, मोलर मास इसका 46 होता है, ये 1/100 है. तो आंसर आ तब जाएगा. पॉजिटिव डेविएशन ही होता है. क्या बेटा? पॉजिटिव डेविएशन ही होता है. किस में? वो वाटर प्लस अल्कोहल. उसमें वॉल्यूम बढ़ता है, वो होता होगा, देख लेना एक बार. वाटर का अल्कोहल डालते हैं, तो मैंने लिखा था ये रटने वाला है फ्लोर, तो इसलिए मैंने उसमें आपको बोला नहीं ज्यादा. देख लेना एक बार फिर भी. ठीक है, इंट्रैक्शन आपके बढ़ते हैं घटते हैं. अच्छा, इंट्रैक्शन घट रहे हैं तो हाँ पॉजिटिव ही होता होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज. 520 कैसे आया था बताएंगे आप? अरे एग्जाम एटलीस्ट पता तो चले गलतियां कैसे कर रहे हैं आप. सर मैंने वो मैंने 10⁻23 अपॉन वो 10⁻21 कर दिया था. अच्छा. और अच्छा, वो एक और दोनों क्वेश्चन मुझे एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है. आ, आप हैंड रेज कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, जो भी सही लगे. मैंने इनकाउंटर किया है, मतलब मैं भी 11th में अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ये पावर के डिवीजन सब्ट्रैक्शन में, या जो भी होता है कहानी, नो नो पावर सर. के डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में. नो नो सर. सर. ओके, कुछ बच्चों को मैंने देखा इस बार जब मैं पढ़ा रहा था तो उनको दिक्कत आ रही थी. 10th में शायद सही से किया नहीं होगा इसलिए. फिर आपको 12th में आपको तो आता है. खैर, कमिंग टू द पॉइंट, द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल इज, the third definition or third way to solve the question of mole is, this is for only gas. This is also called Avogadro's law. ठीक है, गैस. तो इसका भी स्टेटमेंट होता है, और इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और इसका ये भी. तो ये कहता है एट एस टी पी, राइट डाउन, एट एस टी पी, एट एस टी पी, एट एस टी पी. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और ठीक ठाक क्वेश्चन आता है. एट एस टी पी, number of moles, number of एक मिनट, at STP for a given volume of gas, for a given volume of gas, number of molecules, number of molecules are, number of molecules ब्रैकेट में लिखना, number of molecules not atoms. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है. नॉट एटम्स, ब्रैकेट क्लोज,
are equal. Are equal. What do I mean by that? समझना कि अगर एसटीपी किसी को याद है क्या होता है, मतलब मैंने एक वर्ड यूज किया एसटीपी, तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, याद है किसी को? Yes, sir. बताइए। Pressure 1 atmosphere pressure होता है. प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर Temperature कितना पता? 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, दैट इज 273 केल्विन. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो अगर हम एसटीपी कंडीशन ले रहे हैं, मतलब हमने फिक्स कर दिया कि टेम्परेचर प्रेशर आपके फिक्स हैं, जो अभी बताया हमने, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 atm. ओके, सो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लीटर लिया CO2 गैस और आपने लिया 2 लीटर H2 गैस, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे. क्या होंगे? इक्वल मॉलिक्यूल्स. बट एटम्स इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है. तो अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ गैस ली है तो उसके मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, एटम्स इक्वल नहीं होते. प्लीज ये ध्यान रखना. एटम्स इक्वल क्यों नहीं होते? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे 3 एटम्स हो सकते हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हो सकते हैं, तो ये अलग अलग एटम्स हैं आपके. ठीक है, तो एटम्स इक्वल नहीं होते बट मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अगला क्वेश्चन लिखिए. अगला क्वेश्चन नहीं, अगला इसी का या फिर और करके लिखना डेफिनेशन के नीचे. ये एग्जांपल लिख लिया. फॉर एग्जांपल 2 liter of CO2 and 2 liter of H2 will contain equal number of molecules. Equal number of molecules. ठीक है, बट एटम्स इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, देन आप लिखिए और the second version of this Avogadro law. This is used in the numerical. At STP 22.4 लीटर, अगर लीटर लिया है तो ml भी हो सकता है, तो 22,400 ml is equal to 1 mole. Is equal to 1 mole. ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, बताएंगे फिर से आप बोल के? Gas. For which? Yeah, this is only valid for gas, nothing else. So remember that the thing says that if you have taken 22.4 liter of a gas, it will constitute as 1 mole. अगर आपने say for example अगर आपने 22.4 लीटर CO2 लिया है तो इसका मतलब है 1 मोल CO2. या अगर आपने 22.4 लीटर मीथेन लिया है तो इसका मतलब है 1 मोल मीथेन. क्लियर है? Yes, sir. बड़े Yes, sir. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास इन 5.6 लीटर मीथेन and 5.6 liter methane. Mole and mass in 5.6 liter methane. So number of moles 14 and number of moles 18 14 तो नहीं आएगा बेटा. 14 No, कैसे sir. आ सकता है? हाँ, 14 divided by 57 eh? 14 divided by 47. How is it 14 divided by 47? No, नहीं, गलत है 57. बेटा. गलत है. It's not correct. I mean calculation wise wrong है. I guess concept तो easy है. अगेन वही बनाना वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपका. देखिए 22.4 लीटर is equal to 1 mole. So 1 liter is equal to 1 upon 22.4 मोल. ठीक है, बट आपसे पूछा कितने लीटर का गया है? 5.6 लीटर. सो 5.6 लीटर इज इक्वल टू, बेटा जब तक आप ऐसे नहीं लिखेंगे आई कैन प्रॉमिस यू आप इसको 2 महीने पढ़ते रहेंगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे. द वे दैट आई एम राइटिंग यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर वे फॉर at least for certain amount of time. After that you will be able to solve it in your mind.
So this is 1 by 4. This is 1 by 4 mole. Okay. And you know that mole is equal to 18 gram upon molar mass. And since you got 1 by 4 mole, the molar mass of methane is 16. So weight will be 4 gram. किसी का आया था ये? Did anybody get 1 by 4 mole? 5.6 56 56 divided by 22.4. Pen and paper to solve? I don't understand. हर्ष क्या कह रहे हैं? Okay. नथिंग सर, मैं बच्चों से कह रहा था अच्छा 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 कि बच्चों के लिए पेन कह रहे हैं. पेपर ओके का ओके. यूज करो। हाँ, बेटा आप जब तक, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, आप जब तक नहीं लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप सोचिए मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं बच्चों से अभी तक मैंने इतना देखा हुआ है और हर बार मैं यही कहता हूँ और बहुत कम बच्चे ये फॉलो करते हैं और जो फॉलो करते हैं उन्हीं का ही अच्छे से होता है। अगर आप ऐसे लिख के नहीं करेंगे एकदम जैसे प्रिमिटिव, जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में करते थे 9th-10th में, जब तक आप ऐसे लिख के नहीं करेंगे एट द बिगिनिंग, जब आपने 20-30 क्वेश्चन कर लिए हैं, आफ्टर सॉल्विंग 20 और 30 क्वेश्चन, देन यू डोंट नीड टू डू दैट, बट एटलीस्ट बिगिनिंग में 20-30 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बाय राइटिंग एवरीथिंग. ठीक है, दैट वे इट इज इंस्क्राइब्ड इन योर माइंड विद और इट इज इनडेलिबल इन योर माइंड, तो आप इजीली कर सकेंगे. चलिए एक क्वेश्चन और करिए, लेट्स सी अगर आप सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, 11.2 लीटर आपने लिया है. कौन सी गैस लिया जाए? हाँ, समथिंग विच स्मेल्स वर्स्ट. ओके, लेट्स H2S. Yeah. H2S ले, हाँ H2S ले लेते हैं. दैट इज द वर्स्ट स्मेलिंग गैस, राइट? अच्छा देखते हैं कितने लोग याद है. व्हाट इज द स्मेल ऑफ H2S? Rotten egg. Rotten egg smell. Okay, the smell that you get when you pass nearby a open drain or something like that. It is a mixture of H2S and ammonia. खैर, H2S लिया है, आपको मोल बताना है और मास बताना है. To the question and then tell me the answer. तो आपको दे रहे हैं 22.4 लीटर again is equal to 1 mole. So 1 liter is equal to 1 upon 22.4 mole. Now आपको दिया गया 11.2 लीटर is equal to 11.2 upon 22.4 mole, that is half a mole. और हाफ मोल का मतलब कितना हो जाता है? हाफ इंटू इसका मोलर मास 34 होगा. अगर मोलर मास इज 34 देन इट विल बिकम 34. ओके Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका definition, which is not very important apart from a single fact that write down the definition. Does anyone remember the definition if you have ever studied it? Although it's not a very attractive definition, so write down. इसमें के लिए एक फैक्ट आपको याद रखना है पूरी डेफिनेशन में, नथिंग एल्स. ठीक है, पहले लिख लो फिर भी. 1 मोल इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मिनट, 1 मिनट. 1 mole contains as many entities one mole contains as much entity as that present in. Hello. Yeah, 1 mole. Hello. सुनाई नहीं दे रहा सर. No सर sir. सुनाई नहीं दे रहा. एक मिनट. आवाज आ रही है क्या आपको? सर बहुत No धीरे से आ sir. रही है. धीरे धीरे आ रही सर. एक मिनट ना. अभी आ रही है? जी Yes, sir. सर. ओके, वो मैंने एक ईयरफोन निकाल दिया था बिकॉज बहुत दिक्कत हो रही थी. चलिए, 1 mole contains as many entities as that are present in
as that are present in 12 gram of carbon 12 isotopes. Isotope. So what is the important thing? The definition of mole has been founded on the basis of carbon 12. Okay, so आपको चार ऑप्शन बना के दे सकता है. डेफिनेशन ऑफ मोल इज बेस्ड ऑन वन. पहला ऑप्शन दे दिया आपको कार्बन, दूसरा दे दिया ऑक्सीजन, थर्ड दे दिया नाइट्रोजन, चौथा कुछ भी दे सकते, क्या फर्क पड़ता है. तो आप आंसर कौन सा चूज करेंगे? कार्बन 12. Carbon. इज दैट क्लियर? Acha, now Yes, this question might arise in your mind that why was the carbon chosen? Why not something else? तो उसके ऊपर हम जा सकते हैं, बट आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, एंड इट विल टेक 15 मिनट और समथिंग टू एक्सप्लेन. सो मैं उसको नहीं जा रहा, इट इज नॉट वेरी यूजफुल. बट अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ना समझे तो पूछ लीजिएगा अलग से मुझसे, ठीक है. तो यहाँ पे कार्बन 12 आपका बेसिस पॉइंट है फॉर द डेफिनेशन ऑफ the whole thing, that is the mole. Mole contains 6.022 into 10 to the power 23 because the basis point is carbon. Now, coming to the point, this is the first topic. Now, छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है. पहला डालिए परसेंटेज, फिर हम स्टोइकियोमेट्री पे आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है. ये छोटे टॉपिक है बट इनसे क्वेश्चंस आ जाता है. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट शायद कराया होगा, मुझे याद नहीं फर्स्ट क्लास में. परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है. बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स हैं ये, बट इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं मोर ऑफ्टन देन नॉट. तो परसेंटेज आपका एलिमेंट आते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट होता है एटॉमिसिटी. मैं समझा रहा हूँ एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, डोंट वरी. इनटू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ compound. Into, because it is a percentage, so you have to multiply by 100. So what is the percentage of element? It is atomicity multiplied by atomic weight of an element divided by molecular mass and molar mass of a compound. Is that clear? अभी एटॉमिसिटी बता रहा हूं मैं. ओके, तो से फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए H2SO4 दिया गया है, आपसे पूछा गया परसेंटेज एस. एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एटम. तो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर इन द H2SO4? 2. 2. What is the atomic weight of hydrogen? 1. 1. What is the molecular weight of H2SO4? We did calculate it in a while. It's देख लीजिए आप. HSO4 वो 49 98 sorry. 98. So this is the percentage of H. You should remember certain molecular weight. It becomes easy from the calculation point of view. Percentage of sulfur. How many sulfurs are there? 1. 1. What is the atomic weight of sulfur? Atomic weight of what? 32. 32. Sulfur 32 upon 98 into 100. Okay. Percentage of oxygen. How many oxygens are there? 4. 2 A4. 4. It is 16 upon 98 into 100. Now, pay attention. Sometimes to check back whether you have correctly calculated or not, sum of all the elements should be how much? Sum 1. of all the elements will be equal to 100. 1. Right? If you add up all the sum, it will give you 100. लिख लीजिए. Two, 5. You can do the Hmm. calculation later on. You don't have to do it right now. Okay? Okay. As I told you, you can use the calculator for the calculation purpose. Okay? Shall we move forward?
Yes, sir. Okay. Let's see if you are able to solve this one. आपको परसेंटेज एलिमेंट निकालना है इन C2H5OH. Percentage of carbon, percentage of hydrogen, percentage of oxygen. Do it. You have a minute. Do the question. Percentage of carbon. How many carbons are there? 2. This is 46 into 100. Yes, sir. Percentage of hydrogen. How many hydrogens are there? 5. 6. 6 हाँ। है बेटा. 6 है. एक हाँ मैंने अलग से कर लिया सर उसको तो। नहीं, आपको टोटल एटम्स काउंट करना है. एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल एटम्स. यही बहुत सारे लोग गलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है. ठीक है. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो आसान है. Yes. 8/23. इजी है ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, this is it. इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए. और नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज molar mass. Average molar mass. So we are going to talk about average molar mass. Okay, let's take an example. Okay, before going into the molar mass, I hope all of you know what is average. So let's take Jia has 10 rupees. Okay, Harsh or Rexam has 20 rupees. Let's make an easy calculation. Okay, and Suhang has 30 rupees. Okay, what is the average? Average. Yeah, on an average, everyone has how much money? On an average. Yeah, Uh, you know that class average thing? There must be calculation in your school, something called class average in a particular subject. So how do they calculate? 20. Yeah, So 20. 20. How do you calculate the 10 rupees? But yeah, let's so पहले ये कर लेते हैं. 1 into 10 plus Rexam is the one person, so he has 20 rupees. Sohang is a one person, he has 30 rupees divided by. 3. This is how you do it. Okay, let's elaborate this question a little bit. Okay, how many students are there? Okay, so Jia and Nishita have 10 rupees. Rexam and Umesh have 20 rupees. And Sohang has 30 rupees. Now, what is the average now? mm, You have to use the pen and paper. 13. पक्का गलत कर रहे हो. मैं and बोला है मैंने. Jia and Nishita both have 10 rupees. Rexam and Umesh have 20 rupees. Suhang has 30 rupees. Suhang in it only has 30 rupees. So what is the average? 18. 16. 18. Okay, let's do the 16 or calculation. 17. देखते हैं. 18. So Jia and Nishita, how many people are there? 2. Do Two. the Two people have 10 rupees. Okay, Rexam and Umesh, how many persons are there? Two. Two Two. people have 20 rupees. And Nice. Suhang is alone, so one person has 40. 30 rupees divided by how many persons are there for total? 2 plus 2 5. plus 5. 1. So it will become 1. 40 3 70 90 upon 5. 5. 5. Is it clear? 18. The concept of average is clear or not? Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, the same concept is applied with the atoms. Okay. The same concept is applied with the atom. Why is it done? Because देखिए आपको you know the concept of isotope. So atom, say for example, if I have taken carbon 12, so it is not like that कि जो कार्बन एटम होता है वही केवल कार्बन 12 ही नेचर में एग्जिस्ट करता है. Carbon 12, say for example, exists 98%. These are the fake data or these are not the correct statistics.
I'm just giving you to give an example, okay? पता लगा कल आपको लेके आ जाओ और कह दो कि यहाँ पे तो भाई 98 होता नहीं है. This one is 1.7% and carbon 14 is ऊपर लिखना 3%. बेटा 1.3. 0.3%. Total should be 100%. Okay. So what is the average molar mass? So how do you calculate that? The M average will be how many atoms have out of 100, how many atoms have 12 as their atomic mass? 98. 98. So 98 out of 100, right? So 98 into 12 plus 1.7, the atoms out of 100 have 13 their atomic mass, and 0.3 atoms have 14 their atomic mass. And how many total atoms are there? 100. 100. This is how you calculate the average atomic mass. Is it clear? You just have to write down this thing 98 or you can write it for the simplification sake. This is 98%, so 98 upon 100, 1.7 upon 100, 0.3 upon 100. That would also be the same thing. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Write down. Okay, sometimes things will be easier. So I may be teaching you at a little bit higher speed than I usually am. For example, this topic, I'm moving through it a little bit quickly because this is very easy, or at least I think it is very easy. So if you have any problem, you can send a message and I'll slow down. Okay. If I think some topic is easy, but you are not able to grasp it, please tell me. Okay. Yes, sir. Yes, बड़े sir. चलिए एक क्वेश्चन आप करिए. क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में. क्लोरीन 35 which is say for example, again data is not correct, just for the calculation purpose, and chlorine 37, that will be 34.5, right? Do the calculation, calculate the average. 5.5 into 35 plus 34.5 into 37 divided by 100. This will be the answer. You can do the calculation. I don't remember the answer, so you can do the calculation. Okay. Sir. Yes, sir. So you are getting something. 35.69. 35.69 is the answer that he is telling me. All of rest of you can verify. Okay. What is next Yes, topic? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next topic is very important. Okay. That is called empirical formula. ये important है थोड़ा सा. At least there are two type of question in this one. Both are important from the NEET perspective. Only. Okay. All of you who are attending today are attending for NEET, right? Yes, Is sir. there any Yes, sir. JEE student also? No? Okay. एक मिनट, एक था ना जी स्टूडेंट. कौन है? नाम बता दो उनके जो जेई वाले हैं ताकि मैं पहचान लूं जब आएंगे. Oh, never mind. She left. ओके. नहीं मतलब इन जनरल नाम पता है किसी को जो जेई वाले स्टूडेंट है? हर्ष सर. Yes, sir. जो वो राज नंदिनी थी पर वो चली गई. ओके. राजनंदिनी से. अच्छा राज नहीं है, अभी नहीं है. चलिए ठीक है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं. तो व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला? ओके. तो जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ लो पहले, फिर बात करते हैं. ठीक है, मैं लिखा देता हूँ. Molecular formula of glucose is C6H12O6, while the empirical formula is CH2O. Now pay attention.
The molecular formula tells you exactly about how many carbons are there, how many hydrogens are there, and how many oxygens are there. So the molecular formula tells you about the exact number of atoms. Write it down. ये अभी एग्जांपल बाद में लिखना, पहले एक डेफिनेशन लिख लो समझते हुए. मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइट डाउन. द मॉलिकुलर फॉर्मूला टेल्स यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ atoms present in a compound. For example, पहला वाला एग्जांपल लिख लेना. जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, सेकंड हाफ मत लिखना. राइट ऑन द फर्स्ट हाफ. मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज लिखना भूल गया मैं. ऑफ ग्लूकोज, this is the molecular formula of glucose and it tells us there are 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen that are present there. Right? Yes, sir. Okay. Now, empirical formula. What is the empirical formula? Empirical formula आपको exact number of atom नहीं बताता है. ये बताता है आपको atoms का simplest ratio कितना है. 1:2:1. अच्छा, simplest word is the important here because मैं 1:2:1 को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना. ये सब सेम ही नंबर है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज 3 numbers आर सेम. Yes, sir. राइट? बिकॉज ये बस हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट द फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट रेशियो बिकॉज यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर. राइट? आई मीन you can simplify it but then it will become fractional. So this is the simplest ratio. So empirical formula does not give you the exact number of atoms, but it tells you in what ratio, in what simplest ratio the atoms are present. So if we talk about glucose, the presence there is carbon is to hydrogen is to oxygen as 1:2:1. Is that clear? Yes, sir. So write down. Empirical formula represents not the exact number of atom in a compound, not the exact number of atoms in a compound, but in what ratio the elements are present. In what ratio the elements are present. ठीक है? सो आप इतना लिख लेना कि जैसे CHO जो है आपका 1:2:1 है. Empirical formula of glucose has is it clear? Yes, sir. Okay. Now, अगर आपने से if some of you are observant, you might observe that there is a distinct relation between molecular formula and empirical formula. Pay attention. If I take empirical formula and multiply it by 6, we get the molecular formula. Can you observe that? Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान देना जरा. यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आप समझ गए तो अच्छा, ना रट के भी काम चल जाएगा, बट समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है. इसको मैं n मान लेता हूं. हमें पता है वैल्यू इज 6. वी नो द वैल्यू इज 6. लेट्स राइट डाउन अगेन. दिस इज C6H12O6. वी नो द वैल्यू हियर इज 6, बट लेट्स सपोज वी डोंट नो. Let us suppose we don't know. Can I write it like this? Can I Yes, write sir. it like this? अच्छा, जो n की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो होगा बेटा, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है? इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. और रुको एक मिनट, ऐसा करो, इसको मोलर मास लिख लो.
क्या फर्क पड़ता है हम क्या लिख रहे हैं, इसको आपको समझ में आना चाहिए, जितनी क्लैरिटी होगी उतना अच्छा है ना। ये मोलर मास लिखते हैं, इसको इंपिरिकल फॉर्मूला मास लिख लेते हैं। समझना, पहले समझ लो फिर लिखना। तो ये बताओ जरा मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। 180. 180. 180। ओके, इंपिरिकल फॉर्मूला कितना है, CH2O, दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। इसका जरा मोलर मास निकालो, क्या होगा। Carbon is 12 Carbon plus is 2, 30. 30. So 30. Are we getting the answer as 6? Yes, Oh sir. no. So Yes, can I say, pay attention जरा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। Is it visible on your end? Yes, Yes, sir. sir. Okay, थोड़ा छोटा कर दिया, इससे मैं पूछ रहा था। देखिए, so can I write like this, empirical molecular formula is equal to empirical formula to the n, where the value of n is equal to molar mass, जो लेफ्ट में लिखा है वही, of the compound upon empirical mass या empirical formula mass। Divide. Is it clear? Hello. Yeah, is it clear? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, write it sir. down. Yes, sir. Then we'll do another question. Hello. हाँ बेटा, Hello. हाँ आवाज आ रही है? Yes, sir. Am I audible? Okay, तो मैं आप हेलो। Yes, sir. Okay, Yes, sir. आप थोड़ा बार बार कराकुरुक कर रहा है। अच्छा, हाँ यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, हल्का सा। राइट डाउन अ क्वेश्चन, आगे बढ़े। Yes, sir. sir. Okay, the question is, क्या हुआ, लिखना है? No, sir. Okay, write it down। So question. कोई नहीं, क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट, मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या एक मिनट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Molecular formula. of a compound Of a compound. And which has yes, which has empirical formula Empirical. CH2 and molar Formula. mass, लिख दे रहा हूँ मैं, सामने आपके लिखा है, and molar mass 56 हाँ? ए and molar mass 56। आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। calculate the molecular formula. Okay. हम्म, 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 Is 100 by 18. So 56 divided by 18 will be 4. Sir, C4H8. ओके, देखते हैं बाकी लोग, हुआ किसी का? Sir, C4H8. हाँ हाँ, आपका कर C4H8. दिया। ओके, सबको हो गया, C4H8. नाइस। yes, sir. देखिए, तो कितना है, आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला है आपका CH2, तो इसका जो CH2. मास हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला मास will become 14, Yes, molecular mass is 56, Yes, so the sir. value of n will be 56 6 upon divided 14. 14, so that will be Yes. 4, and you 4. know that the molecular formula is equal to empirical formula That is formula into into n, n. तो यहाँ पे Yes, sir. CH2 का होल 4, so that is C4H8। H8. Yes, Clear sir. है? Hello. तो Yes, sir.
Are you able to solve these type of questions? Should we do more of these type, or should we move to the second type questions? So one more Second type. question. Okay, write it down. You do it on your own. I'm not going to solve this one. Okay, write down a question. Yes, sir. Calculate the empirical formula. Calculate the molecular formula of a compound Molecular formula of a compound. which has Which empirical formula CH and CH and the molecular weight Wait. Mole- For molecular empirical formula CH. and the molecular weight 78. Molecular weight. Okay. Weight 78. 78. Okay, sir. That will be 78. कितना होगा? With 13 sir. नेम बताना है आपको, ठीक है, कंपाउंड का C6H6. नेम बताइए, नेम क्या होता है? The methyl ethane propane butane pentane. Sir, hexene. Benzene. नहीं बेटा, बेंजीन होता है। Benzene. हेक्सीन कैसे हो जाएगा? Benzene. आंसर होगा आपका C6H6, दैट इज C6H6. Yes, sir. ठीक Benzene. है, बेंजीन हो Yes, जाएगा, ठीक sir. है। Ew. Okay. सेकंड डालिए, क्वेश्चन ऑफ सेकंड टाइप, राइट डाउन। ऐसे लिखना है, पहले टाइप के क्वेश्चन ये थे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आई हैव टू लुक अप द क्वेश्चन। ओके, गिव मी Okay, sir. प्रिसाइज क्वेश्चन चाहिए होंगे आपको। पहले इसका लिख लीजिए, क्वेश्चन का बेसिक फ्रेमवर्क तो लिख लीजिए। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड Calculating the empirical Very good. formula of compound which has of compound. आप Compound. नॉर्मल तरीके से लिखना, मैं वर्टिकल लिख रहा हूँ, आप ऐसे मत लिखना अभी। which has Which percentage carbon percentage carbon? ओके, एक मिनट सुन लो पहले, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। I'll say the percentage carbon. They will also write in the question percentage of carbon, but sometimes they will write percentage mass because it is known to everyone that जो भी हम यहाँ पे लेते हैं वो percentage mass होता है। तो अगर वो percentage carbon भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे percentage of element नहीं है, वो percentage mass है। तो आप ऐसे लिख दो, पहले क्वेश्चन है तो ऐसे लिख दो, percentage mass of carbon, percentage मत लिखना, because the numbers that I'm giving you, these are percentage mass. So percentage mass of carbon is 54.554, percentage of hydrogen is 9.09, and percentage of oxygen is 36.36. Oxygen percentage 36.36. Calculate the God. empirical formula. Okay, बड़े Yes, sir. Yes, ना, sir. ये क्वेश्चन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया मेथड तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। जब भी आपको परसेंटेज मास दिया जाए तो आपको ही होना चाहिए। अच्छा, कई बार हो सकता है मैं आपको ऑक्सीजन नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, समझ लो क्वेश्चन पहले, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं कह देता कि परसेंटेज कार्बन इज 54.4, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 9.09 एंड ऑक्सीजन इज देयर, बट मैंने आपको परसेंटेज नहीं दी। तो बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, बस 100 माइनस, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 100 होगी, नेसेसरी नहीं 100 हो। तो अगर आपको एक चीज ना दिया जाए, दो चीज दिया जाए, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करके तीसरे का परसेंटेज अपने आप निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now you'll make the columns like this. ठीक है, कॉलम बनाने ही है आपको क्वेश्चन में। पहला कॉलम है नेम ऑफ द एलिमेंट, सेकंड इज परसेंटेज मास, थर्ड इज एटॉमिक वेट। सो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। Yes, अच्छा sir. ध्यान देना जरा, हाँ ध्यान देना, कई बार वो क्वेश्चन में आपको देंगे, ठीक है, और हो सकता है वो आपको वैल्यू 12 नहीं देके 12.2 दे दे एटॉमिक मास की।
तो आप क्वेश्चन प्लीज पढ़ लेना ढंग से, अपने आप 12 लेके मत कर देना। हो सकता है आंसर गलत है, हो सकता है कैलकुलेशन वो इजी करने के लिए आपको दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू दे सकता था आपको 1.09 या कुछ ऐसा दे सकता था, तो या 1.01 दे देता मैं आपको, तो इट विल बिकम इजी, राइट। तो यहाँ पे कई बार वैल्यूज वो अलग अलग दे देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव मास होता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको बस इतना याद रखना है, जो भी ये नंबर है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, 54/12 जैसे लिखा है बस यही करना है आपको। प्लीज कैलकुलेटर निकाल लीजिए और वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, प्लीज ध्यान देना ये, ठीक है, एटलीस्ट 2 डिजिट टू द डेसिमल। 0.54 डिवाइड बाय 12, So 4.5 54. 4.5, after rounding off. 4.554. 5. दिस इज 9.09 एंड 36/36/16 कितना है, द लास्ट वन 36.36 divided by 16 is 2.27. 2.2725. बस 2 7 बहुत है, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू आफ्टर दैट, out of these number the one which is the smallest one उससे आप सबको डिवाइड कर देंगे, उसे हम कहते हैं सिंपल रेशियो निकल आता है उससे। तो सिंपल रेशियो क्या निकलेगा आपका 4.55 अपॉन 2.27। एग्जैक्ट बेटा ये मैकेनिकल प्रोसेस है, आपको पता ही होना चाहिए, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको कि ये स्टेप्स करने हैं आपको। अगर आपने नहीं किया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू आई 1, इन दोनों की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 2 आई थिंक, राइट। और इसकी वैल्यू Yes, कितनी हो sir. जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 4, राइट। Yes, sir. तो आपका जो एम्पिरिकल अच्छा। फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब आपका, सी कितने C2, कार्बन है, C2H4O1. C2H4O. दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, Oh. राइट। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अब देखिए जरा, कई बार क्या होगा, मैं इसी क्वेश्चन पहले ये सब लोग लिख लो फिर मैं समझाऊंगा अगला पॉइंट। ये क्लियर है, पहले सबको क्या करना है, पहले कॉलम बनाना है, फिर आपको एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है परसेंटेज मास को, फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सारे आंसर्स को डिवाइड कर देना है। Yes, इज इट sir. क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक केस क्या बनेगा आपको, जब मैं न्यूमेरिकल आपको घर के लिए होमवर्क दूंगा या जब मैं शीट भेजूंगा उसमें होंगे क्वेश्चन ऐसे, कई बार वैल्यू 2 नहीं आएगी, ध्यान देना, हो सकता है वैल्यू आ रही हो 2.1, अगर वैल्यू 2.1 आ रही है दैट्स ओके, टेक इट एज 2, ओके। जैसे अभी हमने लिया 4.1 आ रही हो 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वैल्यू आपकी Hello. ऐसे आ गई कुछ, बेटा बात ही नहीं, एक बार सुन ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका 2.5 वैल्यू आ गई और यहाँ पे अगेन से फॉर एग्जांपल 3 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पे 2.5 को 2 मत ले लेना गलती से भी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर 2.9 आ रही है तो भी 2 मत ले लेना, तो 3 लेना, ठीक है। खैर अगर आपका कभी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे 2.5 आ गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, Yes, sir. और h कितना है 3 है और o कितना है 2 है। तो अगर आपको फ्रैक्शन हटाना होगा यहाँ से, कभी भी हम आंसर में फ्रैक्शन नहीं देते हैं, तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा C5H6O4। इज इट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. तो आपको अगर अगर कभी भी फ्रैक्शन में दिया गया तो फ्रैक्शन आपको इवेंचुअली हटाना ही पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा। 0.75 आ जाए, तो जब कभी फ्रैक्शन आ सकता है तो फ्रैक्शन में लिख देना, उसको अप्रोक्सीमेट मत करना। फॉर एग्जांपल 0.75 आया कहीं पे, तो इसको 1 मत मान लेना, इसको 3/4 ही लिखना, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो अगर फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्टेबल है तो वहां पे आप कभी भी इसे पॉइंट में अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, Hello.
Yes, sir. ठीक है, लिखे अगला क्वेश्चन। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके, क्वेश्चंस देने दो मुझे। ओके, आपको दिया गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है जहां पे आपको बोरॉन दिया गया है 15.9 एंड फ्लोरीन दिया गया है आपको 15.9. फ्लोरीन दिया गया है। बताइए फ्लोरीन कितना होगा, मैंने दिया नहीं है, अब आपको निकालना है। फ्लोरीन कितना होगा पहले बताइए। फ्लोरीन So 84.1. 84.1। 84.1. यस One. यस, 84.1, ठीक है। अच्छा, बोरॉन का एटॉमिक मास आपको दे दिया गया है 10.8। कई बार मैंने कहा था ना आपको एग्जैक्ट नहीं देगा, 11 नहीं दिया, उन्होंने 10.8 दे दिया गया और इस 3 दिया गया है। करिए। बट आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी। 0 divided कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, बट घर में मत करना क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। आई होप यू नो दैट। अर्चना आप हैंग हो रही है। हाँ, ये आपका थोड़ा Yes, sir. यहाँ कितना हो जाएगा 15.9 अपॉन 10.8, 4.4. यहाँ पे 84.1 अपॉन 19, तो ऊपर वाले में कितना आ जाएगा? आई थिंक 1.5 आ जाएगा। Yes, sir. 1.5. नीचे वाले में 4.4. 4.4, तो जो छोटा वाला है उससे डिवाइड कर दो। 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 That is और 1. 4.5 अपॉन 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 Three. आ गया। ये कितना? 1, 4.4 है, ये 3. 3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो Yes, आंसर क्या हो sir. गया? BF3. ओके, आपने बस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है? एक क्वेश्चन दे दूं मैं घर से सोचने के लिए, अगर पढ़ा हो आपने तो, मतलब याद नहीं हो दैट ओके। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है आपने? थोड़ा बहुत पढ़ी थी पर लगता है हमारे दिमाग से निकल गई। नहीं कोई नहीं, तो आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, सोचना। ओके सर। BF3 BCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये क्वेश्चन। BI3 BR3 भी है और BI3। सबसे अच्छा इसमें लुईस एसिड कौन सा है? लुईस एसिड तो पता है, याद है या वो भी भूल गया हो? लोवेस्ट एसिड लुईस ल्यूइस एसिड एसिड जो इलेक्ट्रॉन Yes. एक्सेप्ट Yes, करते हैं, me. ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सब में बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये होमवर्क के लिए सोच के आना, ठीक है। यहाँ पे क्या एवरी बोरॉन Yeah. कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स? कैन यू सी दैट? Yes, Yes, sir. So, or how many electrons should be there in the outer orbit of boron? Three. Minimum there should be 8. So Yes, these sir. are electron deficient compound. Yes, These are sir. electron deficient compounds. So what will happen? They will try to attract electron. That is why they are called Lewis acid. तो आपको बताना है इसमें कौन सा Lewis acid है सबसे अच्छा। पढ़ना अगर याद हो, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। अभी ये BF3 आ गया तो ऐसे ऐसे ही हम छोटा छोटा सा टॉपिक एक एक दो क्वेश्चन करके, जब भी कोई रेलेवेंट टॉपिक आएगा उससे जुड़ा हुआ तो मैं देता रहूंगा, तो आपका और भी चीजें पुरानी रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। Yes, चलिए, sir. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन, अच्छा एक काम कर लेना, जो मैंने उस दिन मोलैरिटी पढ़ाई थी वो पढ़ के आ जाना, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। Yes, sir. या हम उससे ज्यादा पढ़ सकेंगे। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। हाँ सर, Thank you, यस सर तो सब बोल sir. रहे हैं, लेकिन पढ़ के आने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं सर ये लोग। हाँ मैंने क्यों? पूछा, जैसे आज से सुहांग से पूछा, वो तो पढ़ के आया था खैर। अच्छा अच्छा, हाँ, थोड़ा सा तो लाइन अप हो रहा है। हाँ मैं क्लास में पूछता रहूंगा, तो वो पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये बच्चे धीरे धीरे हो रहा है, पढ़ते हैं, पूछते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, ठीक है, मोलारिटी एंड मोलारिटी। बट दिक्कत ये है सर कि सामने है नहीं बच्चे,
तो इनको हाँ। डांट नहीं सकते उतने अच्छे से। तो ये अच्छा है। तो अच्छे से डांट सकते हैं सर, कोई नहीं, क्यों डांट सकते हैं ना। Yes, नहीं sir. नहीं, सामने का ज्यादा Yes. इफेक्ट होता है ना। अब पता लगा मैं यहाँ पे डांटा और बच्चे वहां पे मुझे आवाज बंद करके बैठ रहे हैं। अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया, हम यहाँ पे एनिमे चल रहा है। जैसे चलो, रिजल्ट लाना जरूरी है। अगले साल जब अच्छा रिजल्ट आएगा ना, सारा डांट भूल जाएंगे। हाँ ठीक है। भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मोलारिटी सुनूंगा, ठीक है, जो पढ़ाया था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अभी Thank इसमें you. मैथ्स का कोई है क्या? चलिए बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, आपका Next वो भेज दीजिएगा, हम लोग Yes, sir. ट्यूसडे को आपका क्लास करेंगे इस केमिस्ट्री का। तो जो भी ट्यूस- क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। 6 बजे से 7 बजे से है ना, ठीक है सुहांग? 7 ठीक है, बजे मैं से रात को केमिस्ट्री भेज दूंगा होगी। सर आपको, ठीक है। हाँ, मंगलवार को ट्यूसडे को हम लोग 7 बजे केमिस्ट्री करते हैं। Okay, sir.